Good morning everyone, Neha here. So today we have to start class 6, chapter 11, light, shadow and reflections. Okay, so before starting the explanation part, let us know about the words used in this chapter. So what do you mean by light? Light means in Hindi, prakash. Shadows means in Hindi, parchai. And reflections means if you look inside the mirror and you see your face inside the mirror, that is your image. You find your image? Yes, you used to see your face inside the mirror that looks same as you are. Yes, the whatever you see your face inside the mirror when you look into it, that is known as reflections. Okay, I hope you have a rough idea now. Now we will discuss this chapter in detail one by one in different parts, so that video should not be so long. Okay, so let's start now. So we see so many objects around us. हम अपने चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. Yes, suppose when you are coming to school from your home or you are going back to your home from the school or you are going to your marketplace, or we can say that when you move from one place to another, okay, then you see many things around you. What are the different things you can see? You can find out, you can see buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers also, and even more things are there. Not only only these things you find many more things around you. ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को आप अपने आसपास देखते हो. सिर्फ आप इन्हीं चीज़ों को नहीं देखते हो, बसेस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल एक्सेट्रा. आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने चारों तरफ आपको दिखाई देती हैं. सो कैन यू टेल मी कि हाउ यू कैन सी ऑल दिस ऑब्जेक्ट. आप ये सारे ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हो? ओके, सो थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ़ दे आर कम्प्लीटली डार्क. अब आप सपोज करिए कि आपको सेम चीज़ों को देखना है. ठीक है, यू हैव टू ऑब्जर्व सेम थिंग, सेम ऑब्जेक्ट, एंड यू फाइंड दैट इज़ कम्प्लीटली डार्क. और आपको लगता है कि यहाँ तो पूरा ही अंधेरा है. सो विल यू एबल टू सी? क्या आप लोग देख पाओगे? अगर पूरा अंधेरा हो गया तो क्या आप सेम ऑब्जेक्ट यू विल बी एबल टू सी? नो ना. यू नीड एनी सोर्स. आपको कोई लाइट का सोर्स चाहिए. सोर्स का मतलब है जहाँ से आपको लाइट मिलती है. अगर आपको कोई लाइट, आपको लाइट कैन बी एनी. इट कैन बी टॉर्च लाइट, इट कैन बी कैंडल लाइट, येस, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, लैम्प लाइट. ठीक है, लाइट कैन बी एनी. इफ़ यू आर हैविंग एनी सोर्स ऑफ लाइट और यू आर हैविंग एनी बल्ब. ठीक है, लाइट, यू हैव अ बल्ब, यस. सो इफ ड्यूरिंग द नाइट टाइम when you are at your home or any places and you want to see something, then you on the lights, then only you are able to see every object. Yes, so it means a source of light is very important if we want to see any object at night time. Okay, I hope you have understood. So we are able to see with the help of light only now. Are you able to see any object in the room? You get the answer now? No. But when you light a candle or a torch, you can see the object present in the room, isn't it? I hope you have understood now these lines. विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. अगर आपकी कोई भी सोर्स नहीं होगी लाइट की, ठीक है, किसी लाइट नहीं होगा, ना कैंडल होगी, ना लैम्प होगी, ना टॉर्च लाइट होगी, देन विल यू एबल टू सी एनी थिंग विजिबल ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ड्यूरिंग द डार्क, व्हेन द रूम इज completely dark or the place is completely dark? No. It means we have learned light helps us to see the object. हमने क्या कंक्लूड किया? हमने ये कंक्लूड किया light is the source which help us to see the object. Okay, now the torch bulb is an object that gives out light of its own. और ये जो हमारी टॉर्च की बल्ब होता है, ये वो ऑब्जेक्ट है जो हमें लाइट देता है. अपनी लाइट होती है. यानी कि टॉर्च, हमारे देखिए टॉर्च की अपनी लाइट होती है. टॉर्च को अगर हम जलाएंगे, ऑन करेंगे, उसे किसी की लाइट की ज़रूरत नहीं होती है ना.
If you on the torch bulb, then you will get a light. It will emit the light. उसमें से light निकलेगी, and because of that light you will able to see the object which are in that completely dark, isn't it? So the sun is another familiar object that gives out light. और ऐसे आपका sun भी है. sun आपका क्या है? दूसरा object है जिससे आपको क्या मिलती है? लाइट मिलती है. और लाइट, सन इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन लाइट. सन को भी किसी की लाइट की ज़रूरत नहीं होती है. इट हैज़ इट्स ओन लाइट. ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट. और अगर आपका डे के टाइम होता है, दिन का टाइम होता है, तो क्या होता है? लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट. तो आपको पता है हमें सन की लाइट होती है जिससे हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं. वी डोंट नीड टॉर्च लाइट, वी डोंट नीड लैम्प लाइट, वी डोंट नीड कैंडल, बिकॉज इट इज़ द ओनली द सन लाइट विच मेक एवरीथिंग विजिबल अराउंड us. Object like the sun that give us emit light of their own are called luminous object. अब जो objects जिनकी अपनी लाइट होती है, जिन्हें किसी के लाइट से रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या किसी की लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती शाइन करने के लिए, दैट इज़ नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट. लुमिनस ऑब्जेक्ट किन्हें बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट विच हैज़ देयर ओन लाइट. जिनकी अपनी लाइट होती है, उन्हें किसी की लाइट की विजिबल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी की लाइट की ज़रूरत नहीं होती है. दे हैव देयर ओन लाइट. आप देखिए लुमिनस ऑब्जेक्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल, एक मैन मेड. नेचुरल लुमिनस कैसे होंगे? देखिए नेचुरल में क्या आता है आपका सन. सन हैज़ ओन लाइट. सन की अपनी नेचुरल है, सन की ओन लाइट है. और आपका क्या है? जुगनू जिसे कहते हैं हम, ठीक है, उसकी अपनी ओन लाइट है. आप देखते हैं जब जुगनू को देखते हैं वो अपनी लाइट छोड़ते हुए चलता है. यस, इट मीन्स द नेचुरल luminous object is man, that is sun and जुगनू. ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट मैन मेड. अगर हम मैन मेड की बात करेंगे तो मैन मेड ऐसे कौन से लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं जिनकी अपनी लाइट होती है? इट मीन्स बल्ब. यस, बल्ब हैज़ इट्स ओन लाइट. बल्ब की अपनी लाइट होती है, उसे किसी की लाइट की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, ठीक है. या ट्यूबलाइट की अपनी लाइट, अगर आप ऑन करेंगे ट्यूबलाइट तो इट विल एवरीथिंग विल बी विजिबल. तो ये आपका क्या है? ये मैन मेड है. टॉर्च लाइट, आपकी टॉर्च की लाइट देखिए, टॉर्च का जो बल्ब है, टॉर्च बल्ब, वो लुमिनस है क्योंकि जब उसे ऑन करेंगे उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, उसे सिर्फ ऑन करो एंड यू विल गेट द लाइट. लेकिन ये मैन मेड है क्योंकि टॉर्च, बल्ब एंड ऑल दीज थिंग, ट्यूबलाइट, दीज आर मेड बाय मैन. दैट इज बाय इट इज़ नोन एज मैन मेड लुमिनस ऑब्जेक्ट. और नेचुरल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो आपके नेचुरल होते हैं, लाइक आपके ये देखिए सन, ठीक है. सन हैज़ इट्स ओन लाइट, लेकिन नेचुरल मैन मेड नहीं है, ये तो नेचुरल है ना, नेचर ने बनाया. यस, सेम वे जुगनू, दीज आर नेचुरल. सो दीज आर नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट. लुमिनस ऑब्जेक्ट आर ऑफ 2 टाइप, दैट इज मैन मेड एंड नेचुरल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, you have understood, then you can mark these lines. These are important. ठीक है, you can mark the object like the sun that has emit own light is known as luminous object. You can mark, this is the important. Okay, till here we have learned. What do you know? Mark it well. Now you see ऑब्जेक्ट लाइक द चेयर एंड द पेंटिंग और द शू. क्या आपने उन ऑब्जेक्ट के बारे में सुना है जैसे कि आपकी पेंटिंग्स, ठीक है, आपकी पेंटिंग्स हैं, शू है. वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम द लुमिनस ऑब्जेक्ट like the sun, torch or the electric light falls on these and they traverse towards the eye. देखिए अगर आपको चेयर को देखना है, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे चेयर है, पेंटिंग है, शू है, ठीक है, यू हैव टू सी इट. आपको इसे देखना है. वी सी दिस व्हेन लाइट फ्रॉम द लुमिनस ऑब्जेक्ट. अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो क्या होगा? आपको पहले सपोज ऐसे कंप्लीटली डार्क रूम, ठीक है, सनलाइट में जब आपका ड्यूरिंग द डे टाइम यू आर एबल टू, इट इज़ एबल टू विजिबल, आपको दिखाई दे जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आपको सन की लाइट आपकी ऑल अराउंड है. बट ड्यूरिंग व्हेन यू आर हैविंग कम्प्लीटली डार्क रूम, अगर आपका कम्प्लीटली डार्क रूम है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You need to see, if you need to see a chair, painting, shoe and many other things that don't have their light, then you need a luminous object. उसको आपको देखने के लिए, टू हैव विजिबल, आपको उसे ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए आपको एक लुमिनस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी लाइट उस पर फॉल करे और वो आपको विजिबल हो आपके आई से. लाइक सन की, टॉर्च की, इलेक्ट्रिक, अगर आप रात का टाइम है तो आपको टॉर्च की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक लाइट की ज़रूरत है. ओके, टॉर्च लाइट की ज़रूरत है, कैंडल की ज़रूरत है. और डे टाइम में आपको सन की लाइट से दिखाई देते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स.
यस, सो इट मीन्स जो आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स, चेयर, पेंटिंग, शूज़, ठीक है, टेबल, ब्लैक बोर्ड, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं कि अगर आपको इन्हें देखना है, इनकी अपनी लाइट नहीं होती, अगर आपको इन्हें देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लुमिनस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी हेल्प से आप इन ऑब्जेक्ट को ईजिली देख सकते हैं. ओके, सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज लुमिनस एंड नॉन लुमिनस. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं दैट डोंट हैव देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है. उन्हें विजिबल होने के लिए, आपको क्या होता है, उन्हें खुद को विजिबल होने के लिए दूसरे की लाइट की ज़रूरत पड़ती है, लाइक चेयर, पेंटिंग, शूज एंड एक्सेट्रा. ओके, बट these are non-luminous object. I hope you have understood non-luminous object. Okay, चलिए अब हम आते हैं 11.1 पे, दैट इज द ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. These three terms I know you have learned in the previous chapters, and I hope you all have understood this in your previous chapters. What do you mean by transparent, opaque and translucent object? And these terms we have learned also in class 5th. So let's revise once more, okay, because these terms we have learned in chapter number 4. Yes, so once more we are revising. Okay, I know you have understood. So once we are revising, so what are transparent, opaque and translucent? Recall our grouping object as opaque, transparent, and in chapter 4 if we cannot see through the object at all, यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट से हम बिल्कुल नहीं देख सकते, इट मीन्स ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास. ओपेक ऑब्जेक्ट किसी भी लाइट को पास होने नहीं देती है, आर पार होने नहीं देती है, दैट इज नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब वो आर पार होने नहीं देगी तो क्या होगा, शेडो वहीं बन जाएगी, परछाई वहीं बन जाएगी, परछाई बन जाएगी क्योंकि वो ब्लॉक कर देगी लाइट को पास होने से. जब ब्लॉक कर देगी वो ऑब्जेक्ट से पास होने से, तो वहाँ आपकी क्या एक पैच पड़ जाएगा, डार्क पैच पड़ जाएगा. उस डार्क पैच को हम बोलते हैं डार्क पैच. जो हमारा बनेगा वो हमारी क्या बनी, वो हमारी शेडो बनी. तो डार्क पैच बनेगा, डार्क शेडो बनेगी ओपेक ऑब्जेक्ट में. ओके, तो ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ एनी ऑब्जेक्ट टू पास द, ठीक है, टू पास द लाइट. फॉर एग्जाम्पल वॉल, स्टोन, ओके, एक्सेट्रा. नाउ कम ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं दैट इज थ्रू विच यू कैन सी क्लियरली, जिससे लाइट आपकी पास हो जाती है क्लियरली. इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट, इट मीन्स दैट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आपको अलाउ करती है कि उसमें से लाइट पास हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ग्लास. ठीक है, ग्लास से पास हो जाती है, दैट इज़ अ ट्रांसपेरेंट. ओके, चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. आपका वाटर भी ले सकते हैं, वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, आपकी लाइट पास हो जाती है उसमें से. अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. अभी हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं दैट अलाउज द लाइट टू पास बट नॉट क्लियरली, ओनली पार्शली. वो ऑब्जेक्ट है इसमें से लाइट पास होगी, ओनली सम लाइट पास. ओके, पार्शली, नॉट क्लियरली, थोड़ी थोड़ी लाइट पास होगी, कंप्लीटली नहीं होगी. ठीक है, नाउ वी कैन टेक द एग्जाम्पल. ट्रांसलूसेंट का क्या है, कलर्ड प्लास्टिक, यस, वैक्स पेपर, टिश्यू पेपर, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ translucent object. I hope you have now revised what is opaque, transparent and translucent object. Okay, now we have to start our activity first. Okay, for this activity first we will discuss in the next video. Thank you.